students, good morning. So today's topic is rational number. So let's start our new topic, rational number. So in the previous class we learn about integers, natural number, whole number, है ना, and their operations. Okay, so in this chapter we first recall their definitions and these numbers. Okay, first one is the natural number. So that counting numbers, those start from 1. So it's called natural number. 1, 2, 3, these are the 1, 2, 3, 4, etc. These are the natural numbers. Next one is the whole numbers. Whole number means all natural number including 0. जो 0 से start होते हैं उसे कहेंगे whole numbers. Next one is the integers. Next one is the integers. All whole number along with negative of natural numbers are known as integers. So we already learn about integers. So this is the recall of their definitions. -5 is negative type of integer. -4 means if it has a minus sign, so these are the negative integer. If it doesn't have sign, so it is a positive integer. And 0 is the simple integer. It is neither positive nor negative. So these are all the integers. Next, fraction. So we already learn about that fractions. The number in the form a by b where a and b are the whole numbers where b is non-zero are called fractions. Just like 1 by 3, 3 by 5, 7 by 9, etc. are all the fractions. In the 1 by 3, 1 is the numerator, 3 is the denominator. So now let's come to the point, rational numbers. So in the circle, see that circle? In the circle, each part is, two parts are shaded. One is the orange and one is the green and one is the white. Okay, two parts are shaded. So in each part is called, इस एक part को हम कहेंगे 1 by 3, 1 by 3, 1 by 3 and 1 by 3. Okay, two parts of out of the 3 are shaded. So we represent this fraction by 2 by 3. क्योंकि दो शेड है, तीन पार्ट, एक सर्कल था उसके तीन पार्ट किए, तीन में से दो शेडेड है, इसीलिए उसे हम 2 by 3 लिख सकते हैं. उसे रिप्रेजेंट करना है तो 2 by 3. द फ्रैक्शन 2 by 3 डिनोट्स दैट नंबर 2 इज डिवाइडेड बाय 3, बट 2 इज नॉट डिवाइडेड बाय 3. ये डिवीजन पॉसिबल नहीं है. द न्यूमरेटर इज नॉट डिविजिबल बाय डिनोमिनेटर कंप्लीटली एंड सच नंबर्स डू नॉट रिसेंबल एनी नंबर सिस्टम स्टडीड अर्लियर. अगर ऐसे नंबर्स जो डिवीजन पॉसिबल नहीं है ना, तो ऐसे सच नंबर्स को क्या कहेंगे? रैशनल नंबर, जिसकी डिवीजन पॉसिबल नहीं है ऐसे नंबर्स को. सो ऑल फ्रैक्शंस आर रैशनल नंबर. अ नंबर, तो प्रॉपर डेफिनेशन देखिए रैशनल नंबर की. अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म p by q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स. ये इंटीजर मीन्स पॉजिटिव हो सकता है कोई नंबर या फिर नेगेटिव हो सकता है. दैट numbers that fraction are called rational numbers. So these are the example. First one is the 2 by 3. 2 is the numerator, 3 is the denominator, and both the positive. Second one integer, -3 negative type of integer, 5. So this means +5 ये पॉजिटिव टाइप ऑफ इंटीजर्स है. तो -3 by 5 ये एक फ्रैक्शन है, लेकिन इस फ्रैक्शन को क्या कहेंगे? रैशनल नंबर. सो 0 इज आल्सो रैशनल नंबर. 0 ये सिंगल है तो इसके डिनोमिनेटर में क्या होगा? 1. मीन्स 0 by 1 इज आल्सो रैशनल नंबर. So another examples of rational numbers are, see, okay, 0 is a rational number since 0 can be written in the form p by q where p is equal to 0. अगर सिर्फ 0 दिया है तो वो रैशनल नंबर है, वो होल नंबर भी है. लेकिन अगर सिर्फ 0 लिखा है तो हम उसे कैसे लिख सकते हैं? 0 by 1, 0 by -1, 0 by -2, जस्ट लाइक दिस. ओके, 0 अगर है तो 0 by 1, 0 by -1. अगर डिवीजन की तो हमारा आंसर 0 आएगा, इसलिए हम क्या लिखेंगे? 0 इज अ रैशनल नंबर. नाउ सेकंड इज द एवरी नेचुरल नंबर इज अ रैशनल नंबर, बट रैशनल नंबर मे नॉट अ नेचुरल नंबर. वी नो दैट 1, 2, 3 आर द काउंटिंग नंबर्स, मीन्स दैट आर द नेचुरल नंबर. अगर 1 है तो ये नेचुरल नंबर है, मीन्स 1 अगर सिंगल दिया है तो 1 का डिनोमिनेटर 1 रहेगा. 2 मीन्स
2 by 1, 3 means 3 by 1, 4 means 4 by 1, 5 means 5 by 1, 6 means 6 by 1. So 6 by 1 is the rational number. This can be written as 1 by 2, 2 by 1, 3 by 1, 4 by 1 and so on. These are rational number. So every natural number is a rational number. जो कोई भी natural number रहेगा वो rational number है. So 2 by 3, 3 by 5, these are also the examples of rational number. Now the second one is every fraction is a rational number. क्या कहा है? एवरी फ्रैक्शन. हमने अभी डेफिनेशन में ही एक्सप्लेन किया था कि जो कोई भी फ्रैक्शन रहेगा वो रैशनल नंबर रहेगा. तो आइदर वो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है. ओके, नेक्स्ट इज एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर. एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, बट रैशनल नंबर नीड नॉट बी एन इंटीजर. दैट मीन्स 2 means 2 by 1, जिसका डिनोमिनेटर अगर नहीं दिया है तो हम उसे 1 कंसिडर कर सकते हैं. दैट मीन्स 2 by 1. -2 means -2 by 1. 3 means 3 by 1. -3 by 1. -3 is an integer. 1 is also integer. 1 is positive integer. -3 is negative integer. तो ऐसे इंटीजर्स रहेंगे तो मीन्स एवरी इंटीजर ये रैशनल नंबर हो सकते हैं. देन next, there are two type of rational number. One is positive rational number, another is negative rational number. So a rational number is said to be positive if its numerator and denominator have both the positive and both the negative sign. Means both the signs are same. जैसे 3 by 5 है, 3 का साइन प्लस 5 का साइन प्लस, मीन्स 3 by plus 3 by plus 5 is the positive rational number. Second, -12 by -7, it is also 12 का साइन माइनस 7 का साइन माइनस, दो साइन सेम है तो उसे कहेंगे पॉजिटिव. दो साइन अल्टर चेंज है तो उसे क्या कहेंगे? नेगेटिव. दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर. नाउ द नेगेटिव रैशनल नंबर. सो negative rational number means a rational number is said to be negative if its numerator and denominator have opposite sign. For example, -2 by 3, 2 का साइन माइनस है, 3 का साइन दिया नहीं है, इसका मतलब वो प्लस साइन है. मीन्स -2 by 3 इज अ नेगेटिव टाइप ऑफ रैशनल नंबर. 4 by 9, इट इज ऑल्सो द 4 by -7, 4 का साइन प्लस 7 का साइन माइनस, मीन्स 4 by -7 इट इज ऑल्सो द नेगेटिव रैशनल नंबर. So these are the examples of negative rational number. Now the next one is absolute value of a rational number. So absolute value किसे कहेंगे? जैसे कि कोई rational number दिया है, suppose 2 by 3, तो 2 by 3 को उसकी अगर absolute value लिखनी है तो कैसे लिखेंगे? If p by q is a rational number, then absolute value of p by q is written as, उससे कैसे लिखेंगे? इससे कहते हैं मॉड्यूलस. क्या कहेंगे? मॉड्यूलस. मॉड्यूलस ऑफ p बाई क्यू, या फिर रीड करते वक्त एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ p बाई क्यू इज. ठीक है, इसे मॉड्यूलस कहते हैं, शॉर्ट में मॉड भी कहते हैं. मॉड ऑफ p बाई क्यू इज इक्वल टू मॉड p. उसे सेपरेट करेंगे, मॉड p मॉड q. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू. हाँ, दिस इज. तो देखिए, हमेशा ध्यान में रखना है कि एब्सोल्यूट वैल्यू के दो आंसर्स होते हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव. जैसे कि मॉड ऑफ 4 by 9 है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 4 by 9, मॉड ऑफ 4 मॉड ऑफ 9, तो उसके दो वैल्यू रहेंगे, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव. लेकिन हमेशा हमें पॉजिटिव आंसर लिखना है, जैसे कि +4 by 9 +4 डिवाइडेड बाय +9. नेक्स्ट यहाँ पर -7 दिया है, मॉड ऑफ -7 by 6. मॉड -7 से सबसे पहले सेपरेट करना है, मॉड ऑफ -7 मॉड ऑफ 6. तो -7 अगर है, नेगेटिव भी है, तो भी उसका आंसर हमें पॉजिटिव लिखना है, मीन्स 7 by 6. लेट्स सी द थर्ड एग्जांपल, मॉड ऑफ -11 by -9. सबसे पहले सेपरेट मॉड ऑफ -11 by मॉड ऑफ -9. माइनस है तो हमें क्या लेना है? प्लस वैल्यू 11 by 9. These are the example of absolute value of rational numbers. Now there are two properties of rational number. First one, if p by q is a rational number and m is any non-zero integer, then
p बाई क्यू, उस अगर फ्रैक्शन है तो उसे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, p मल्टीप्लाई m, q मल्टीप्लाई m. इन अदर वर्ड्स अ रैशनल नंबर्स remains unchanged if its numerator and denominator are multiplied by the same non-zero number. इसे हम कहते हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर भी कह सकते हैं, लेकिन रैशनल नंबर में दो प्रॉपर्टीज ऑलरेडी दिए हैं और इक्विवेलेंट रैशनल नंबर अलग से पढ़ना है. इसके दो प्रॉपर्टीज है उसमें कि ये फर्स्ट, let's see the example of first property of rational number. Just like first one example is -7/9. जैसे ये 3 है, जैसे हमने अभी प्रॉपर्टी पढ़ी कि p मल्टीप्लाई m, तो यहाँ पर m की वैल्यू क्या दिख रही है आपको? 3 दिख रही है. ठीक है, 7 3 जार 21. और हमने प्रोडक्ट रूल्स में पढ़ा है कि एक निगेटिव और एक पॉजिटिव अगर इंटीजर है तो दोनों की जो प्रोडक्ट है तो उसका माइनस साइन आता है, इसलिए -21. और 9 3 जार 27, इसलिए -21/27. और हमने यहाँ पर m की वैल्यू क्या लिए थे? 3 लिए थे, है ना. दिस इज -21/27 इज इक्वल टू -7/9 एंड हियर इज द m इज इक्वल टू 3. नाउ सेकंड वन एग्जांपल इज 3/-5. सो here is the m is equal to 2. 3 multiplied 2 and -5 multiplied by 2. 3 2s are 6, 5 2s are 10. Minus and plus product of one negative integer, one positive integer. Our result is negative. हमने ये integer chapter में पढ़ा था. तो m की वैल्यू क्या हुई? 2. थर्ड एग्जाम्पल इज -4/-3. तो हमने यहाँ पर देखिए दोनों मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. -4 multiplied by -1 is 4 1s are 4, minus will get plus in the product. 3 1s are 3 and minus product 4/3. Sorry, 3 1s are 3 and m is equal to -1. So let's see the second property of rational number. Second property of rational number, if p by q is a rational number and r is a common divisor of p and q, then p by q is equal to p divide r and q divide r. अगर कोई भी रैशनल नंबर दिया है तो उसे हमें सेम नंबर से डिवाइड करना है. तो देखते हैं कुछ एग्जांपल्स. फर्स्ट -15/10. -15 -10 हमने एक ऐसा नंबर लिया जो दोनों को डिवाइड करता है. जैसे 5 इज डिविजिबल, 15 इज डिविजिबल बाय 5 एंड 10 इज आल्सो डिविजिबल बाय 5. सो 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो 15 डिवाइडेड बाय 5 3. और माइनस प्लस हमने इंटीजर्स चैप्टर में पढ़ा था कि दो इंटीजर्स की डिवीजन करनी है तो उसका साइन क्या रहेगा? माइनस, क्योंकि साइन अल्टर चेंज है इसलिए. 10 डिवाइडेड बाय 5 2. सो -3/2 इज अवर आंसर एंड r की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 5. सेकंड एग्जाम्पल 12/-24. हमने ऐसा एक नंबर चाहिए जो दोनों को डिविजिबल होना चाहिए तो हमने 12 ही लिया. 12 डिवाइडेड बाय 12 1, -24 डिवाइडेड बाय 12 2. एंड एक माइनस है एक प्लस है इसलिए यहाँ पर माइनस है, मीन्स 1/-2. r की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 12. नाउ थर्ड एग्जाम्पल -12/-15. तो हमें ऐसा नंबर चाहिए जो दोनों को डिवाइड करता है. 3 है यहाँ पर. 12 डिवाइडेड बाय -3, -15 डिवाइडेड बाय -3. -12 डिवाइडेड बाय 3 4 एंड माइनस जब इंटीजर्स टॉपिक में देखे थे कि इन दोनों का जो साइन आएगा वो प्लस आएगा. 15 डिवाइडेड बाय 3 इज आल्सो +5. सो r इज इक्वल टू -3. तो ये दो प्रॉपर्टी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है. उसके बाद हम देखेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. तो देखिए अभी तक जो पढ़े वो दो प्रॉपर्टीज थे और अभी इक्विवेलेंट रैशनल नंबर. तो जो हमने फ्रैक्शन में पढ़े थे फ्रैक्शन टॉपिक में वही सेम है, सेम रैशनल नंबर में करना है. तो देखिए 2 रैशनल नंबर आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ वन ऑफ द रैशनल नंबर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम अदर बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नॉन जीरो नंबर. तो हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे. डेफिनेशन देखिए, फ्रैक्शन टॉपिक और रैशनल नंबर में दोनों में डेफिनेशन सेम है, सिर्फ वर्ड चेंज हुआ है रैशनल नंबर. फर्स्ट वन एग्जांपल इज -3/7. ये हमारा एक रैशनल नंबर है.
तो हमारे इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स निकालने हैं। जैसे हमने फ्रैक्शन में कहा था कि हम कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर कोई भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। तो हमें सेम नंबर मीन्स अगर न्यूमरेटर को अगर -1 से कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर को भी -1 से ही डिवाइड या फिर मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अगर बहुत बड़ा नंबर है तो वहाँ पर हम डिवीज़न करेंगे, अगर छोटा नंबर है तो हम वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो हमने यहाँ पर लिया है 3 मल्टीप्लाइड बाय -1 एंड -7 मल्टीप्लाइड बाय -1। तो 3 1 जा 3 एंड 7 1 जा 7। तो यहाँ पर देखिए जो साइन है, साइन के तरफ ध्यान रखना है आपको। कौन सा साइन आएगा यहाँ पर? माइनस साइन। ठीक है, इंटीजर्स में हमने प्रोडक्ट देखे हैं, वैसे ही -3/7 ऐसे रूल्स हर जगह वहाँ पर अप्लाई करना है। नाउ सेकंड एग्जांपल इज -12/-7। यहाँ पर भी देखिए -1 से मल्टीप्लाई हुआ है, -12 मल्टीप्लाइड बाय -1। सो 12 1 जा 12 आएगा एंड माइनस माइनस प्लस 7 1 जा 7, 7 1 जा 7 है ना, और माइनस माइनस प्लस। तो हमारा इसका आंसर आएगा 12/7। ठीक है, तो आपको ऐसे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स के कुछ और एग्जांपल्स 10 एग्जांपल्स आपको करके देखने हैं और इसके बाद हमें कुछ और टॉपिक्स पढ़ने हैं, तो वो हम कल के पीरियड में पढ़ेंगे।